Hello everyone. Today we are going to read chapter 2 of Flamingo Lost Spring Stories of Stolen Childhood written by Anis Young. And students, today we will read the second part of this story of Mukesh. Let's start the lesson. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. Students, here one day, writer Anish Jung met Mukesh and she asked him what he wanted to be. Then Mukesh said to her that he wanted to be the master of his own, and he wanted to be the motor mechanic. Then Anish Jung asked him one more question. Did he know anything about cars? क्या वो कुछ जानता है? वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो क्या वो जानता है कार्स के बारे में? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his own town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Writer is saying that when she asked him, did he know anything about cars, then Mukesh said that firstly he would learn how to drive a car. And when Mukesh was giving this statement that he would learn to drive the car first, that time his eyes were looking brightly, and even the writer could see the dream of Mukesh in his eyes, और उसका जो ड्रीम था that was looking completely like a mirage. It means suppose you are in a desert, so there you will feel thirsty. So जिस तरह से आपकी थ्रस्ट डेजर्ट के अंदर बिल्कुल एक मिराज, इट मीन्स एक इमेजिनेटिव काइंड ऑफ लगती है. आपको लगता है कि शायद आफ्टर सम डिस्टेंस यू विल गेट वाटर, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो राइटर इज सेइंग कि लाइक अ मिराज, बिल्कुल जो मुकेश का जो ड्रीम है टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन, टू बी अ मोटर मैकेनिक, एंड फॉर बीइंग अ मोटर मैकेनिक ही वुड लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार फर्स्ट. तो वो जो ड्रीम है दैट विल ऑल्सो लूम्स, इट मीन्स वो भी इसी तरह से एक मीन्स अनफ्रूटफुल होगा फिरोजाबाद की गलियों में. जो फिरोजाबाद की जो डस्ट से भरी हुई स्ट्रीट्स है, तो समवेयर हिज ड्रीम टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन लाइफ विल ऑल्सो स्पॉइल इन द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद विच इज फेमस फॉर इट्स बेंगल. All the families in Firozabad are engaged in making bangles, and you can say that Firozabad is the center of India's glass making industry. And in Firozabad, all the families, even I have already told you, are busy in making bangles, and families have spent generations in even making bangles, and sitting around furnaces, welding glasses, making bangles for all women. So we can say Firozabad is having its own particular place in India. It is the main center of India's glass blowing industry. All families are engaged in making bangles for the women in the land over here, and several families are which have spent generations in working, sitting around furnaces, in welding glasses, and in making bangles. Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slowed their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Now, writer is saying that Mukesh family is also one of them. Those families which are busy in making glass bangles
in Firozabad. So Mukesh family was also one of them, and but unfortunately none of them knew that this is illegal completely. It was illegal for the children to make them involve in making bangles. ठीक, बच्चों को कोई नहीं जानता था कि बच्चों को बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में इन्वॉल्व करना वो इलीगल था. कोई भी इस चीज को नहीं जानता था. बिकॉज फॉर मेकिंग बैंगल्स स्मॉल चिल्ड्रंस had to sit around furnaces, or those furnaces with high temperatures. Those furnaces were set up in dark and dirty cabins. Those cabins which did not have any ventilations for फ्रेश एयर एंड फॉर लाइट. वो डिंजी, वो डार्क और डर्टी सेल्स जहाँ पर ना ही एयर फ्रेश एयर आ सकती थी और ना ही लाइट वहाँ पर आ सकती थी. सो इन दोज डर्टी एंड डार्क सेल्स हॉट फर्नेसेस, ग्लास फर्नेसेस वर सेटअप, एंड वहाँ पर एक हाई टेम्परेचर बना रहता था. एंड देयर दोज स्मॉल चिल्ड्रंस हैड टू सिट एंड हैड टू वर्क हार्ड. सो राइटर इज सेइंग कि इफ द लॉ has been even the law is followed, so surely around 20,000 children could take out of these hot furnaces, जहाँ पर वो अपने डे लाइट आवर्स को स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं. तो अगर लॉ को फॉलो किया गया एज इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक चाइल्ड लेबर का लॉ बना हुआ है. तो राइटर इज सेइंग इफ द लॉ इज फॉलोड surely around 20,000 children can be taken out of these dark and dirty cells where they had to waste their daylight hours, and sometimes these children had to lose the brightness of their eyes also, because in small age they start working, and even they had to sit around the hot furnaces with high temperatures. So due to that they had to lose the brightness of their eyes also. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in pre-medieval state. Now, writer is saying that one day she asked Mukesh to make her visit his home. उसने कहा कि मुकेश चलो आज मैं भी तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, मुझे भी अपना घर आज तुम दिखाओ. तो Mukesh felt very happy. Why he was feeling very happy? Because recently his house was rebuilt. तो उसको अच्छा लगा कि राइटर अनीश जंग वुड विजिट हिज हाउस. श्योरली शी वुड फील हैप्पी, और इवन उसको अच्छा लगेगा कि भाई इसका मुकेश का घर तो अच्छा बना हुआ है. तो मुकेश की जो आइज थी वो बीमिंग हो रही थी. इट मीन्स उसमें एक लाइट दिखाई दे रही थी, एंड ही वॉज रेडी टू मेक हर विजिट हिज होम. ठीक है, उसने प्राउडली राइटर से कहा भी कि उसका घर तो अभी रिबिल्ट हुआ है. सो एज राइटर वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ मुकेश विद हिम, सो दे बोथ वर पासिंग through stinking lanes. It means very dirty and narrow lanes. Those lanes were filled with garbage, and even passed by the homes which remained hovels. It means जो houses थे they were also even like huts, and they were also completely damaged. Their walls were also damaged. ठीक, उन हाउसेस की जो वॉल्स थी वो भी क्रम्बलिंग, इट मीन्स डैमेज हो चुकी थी. उनके जो डोर्स थे वॉबली, वो भी हिल डुल रहे थे, एंड इन दोज हाउस वर नॉट हैविंग एनी विंडो. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे घरों के सामने से होकर वो दोनों गुजरते हैं. उन स्टिंकिंग, उन जो नैरो एंड डर्टी लेन से जब वो गुजर रहे थे तो बहुत सारे घरों के सामने से वो होकर गुजरते हैं. ठीक है, दोज हाउसेस which walls were crumbling, है ना, which whose doors were wobbly. It means हिल डुल रहे थे और वहाँ पर कोई भी विंडो नहीं थी. ठीक है, some houses were in which humans and animals both were living, even both were living in an ancient way. ठीक है, मीन्स ओवर क्राउडेड थे. सेवरल हाउसेज वर
even in which a big number of humans as well as animals was living. ठीक, एक in a coexisting way और we can see in an ancient way, वहाँ पर animals और humans दोनों एक साथ रह रहे थे. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it down. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiled. Now, writer is saying that ultimately, crossing through the street, passing through the streets, ultimately they both reached at in front of a house, and that was the house of Mukesh. As they reached the house, Mukesh pushed the iron door with his foot, and they both entered in a half-built shack. इट मीन्स जो वो घर रिबिल्ट किया गया था वो भी अभी हाफ बिल्ट था, हाफ बना हुआ था और हाफ ऐसा ही छोड़ा हुआ था. उसका जो वन पार्ट था वहाँ पर डेड लीव्स से उसको कवर अप किया हुआ था, थैच्ड, है ना. हाफ हाउस वॉज रीबिल्ट एंड हाफ वॉज इवन स्टिल अनबिल्ट. तो हाफ जो अनबिल्ट था उसको डेड लीव से, डेड ग्रास से थैच्ड किया हुआ था. एंड अंडर दैट थैच्ड एक फायरवुड स्टोव, चूल्हा रखा हुआ था और उस चूल्हे के ऊपर एक लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था और उस बर्तन के अंदर स्पाइनच लीव्स वर बॉइलिंग. ठीक, पालक की जो लीव्स थी वो पक रही थी. ठीक है. और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द ग्राउंड अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट वाज आल्सो lying, and in that more chopped vegetables were even present or were lying in that. ठीक है. जो ग्राउंड पर एक बड़ी सी लार्ज वेसल रखी हुई थी, एक बड़ा सा बर्तन रखा था और उसके अंदर और भी बहुत सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी. अ फ्रेल, इट मीन्स वीक, अ वीक यंग वुमन वाज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. सो जैसे कि फायरवुड स्टोव वहाँ पर रखा हुआ था जिस पर वो काम कर रही थी, जिस पर वो कुकिंग कर रही थी, वीक यंग वुमन. ठीक है. और पूरी फैमिली के लिए फूड पका रही थी. तो थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल. तो जैसे ही राइटर बताते कि वो दोनों, राइटर एंड मुकेश, दे बोथ एंटर्ड इनसाइड द हाउस, तो वो अपनी उसी आइज फिल्ड विद स्मोक, उसकी आइज में स्मोक भरा हुआ था तो उसमें टीयर्स क्रिएट हो रखे थे, तो वो जो है उसी स्मोक से भरी हुई आइज के थ्रू वो स्माइल करती है लेडी. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. ये जो लेडी वहां पर बैठी हुई थी ये मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी. ठीक है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, her husband, Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. Now, writer is saying कि that weak young woman who was preparing food for whole family, she smiled at them, and but she was not much older in years, and very soon maybe she got married, and now she even was the bahu. She was the daughter-in-law, or we can say in custom the bahu of that house, and she was having the responsibility of 3 men. One, her husband, it means Mukesh elder brother, and second one was Mukesh, and third one was their father. So as writer is saying, as writer and Mukesh they both had entered inside the house, so just then older man also entered inside the house. तो जैसे ही उसके उनके फादर वहाँ पर एंटर होते हैं, so that daughter in law, it means that young and weak lady, वो वहाँ से उठ जाती है, and she shifted or hid herself behind the broken wall. ठीक है. and she also covered her face with veil. ठीक है. वो घूंघट से अपने फेस को कवर कर लेती है, because as custom demands,
जैसे कि कस्टम वहाँ पे डिमांड करता है, ठीक है, कि जो डॉटर इन लॉ है सी मस्ट कवर हर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो ऐसे ही जैसे कि उनके फादर एंटर हुए तो उसने भी ऐसा ही किया, अपने फेस को वेल से कवर कर लिया। और सी ऑल्सो हिड हर सेल्फ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। In this case, the elder is an impoverished Bengal maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a Bengal maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो इस तरह से राइटर बता रहे कि जो एल्डर वन था, इट मीन्स द फादर ऑफ मुकेश, ही वॉज अ पुअर एंड इवन अनसक्सेसफुल बेंगल मेकर। और उसने अपनी जो हार्ड लेबर की थ्रू आउट हिज लाइफ, फर्स्टली उसने एज अ टेलर वर्क किया एंड देन ही वर्कड एज अ पुअर बेंगल मेकर। सो ही वॉज completely failed to renovate this house, and he was completely failed to send his children, two sons, to school also. All he had, or he was able to manage only टू टीच दैम वॉट ही नोस। ठीक, वो अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने में अनसक्सेसफुल रहा और वो इस घर को भी कंप्लीटली रिनोवेट कराने में अनसक्सेसफुल रहा। ओनली वॉट ही कुड डू, क्या कर सका, ही वॉज एबल टू टीच द वर्क ऑफ दिस बैंगल मेकिंग टू हिज सन्स। ठीक है, अपने बच्चों को वो सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही काम सिखा सका, इससे अलावा वो कुछ भी नहीं कर सका। एंड ही worked hard throughout his life, first as a tailor and then as a poor bengal maker। तो ये स्टेटमेंट उस बंदे का था, इट मीन्स द फादर ऑफ मुकेश। ठीक है, व्हेन राइटर मेट हिम देन मुकेश फादर टोल्ड दिस इंसिडेंट टू हर। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Now, writer is saying that after observing the condition of house and the family members, meeting with family members, now writer met the grandmother of Mukesh, and she also communicated with her. So the grandmother of Mukesh said that it is his karam, his destiny. It means जब उसने पूछा कि भाई why you are spending your life in so adverse condition, in so poor condition, you should even do some other work in place of bangle making. If you are not getting sufficient amount of money, sufficient amount of profit from this business, तो मुकेश की ग्रैंडमदर का कहना था कि it is his karam, his destiny, कि ये तो उसका भाग्य है, ये तो उसके कर्म है। ठीक है, और उसने कहा कि she has watched her own husband go blind। उसने in front of with the dust from the polishing of the glass, उसने अपनी आंखों के सामने ही अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है। ठीक है, कहीं से, बाय द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। जब वो जो है पॉलिश करते हैं उससे जो एसिड क्रिएट होता है, तो थ्रू दैट एसिड उसने तो क्या उस मीन्स उसने अपने हस्बैंड को इस तरह से ब्लाइंड होते हुए देखा है। और फिर वो कहते हैं कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, क्या जो गॉड के द्वारा दिया गया वर्क है, क्या हम उसको इस तरह से लीव कर सकते हैं। इन दैट वर्क आर सेवरल जनरेशंस हैव पास्ड। ठीक, बहुत सारी जनरेशन हमारी गुजर चुकी है। ठीक है, फर्दर शी सेड दैट दे आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, सो दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। उन्होंने बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, घरों में, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, बाकी घरों में, इन एवरी अदर यार्ड, बाकी जो यार्ड है, इन एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर स्ट्रीट में उन्होंने ओनली एंड ओनली दे हैव सीन बैंगल्स, एक्सेप्ट बैंगल्स दे हैव नेवर सीन नथिंग। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ grandmother of Mukesh.
Spiral of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out uh, of seven colors of rainbow lie in mounds in unkempt yard are piled on four-wheeler wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. So, writer saying that spiral of bangles of different colors, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, and we can say every color which is born from the seven colors of rainbow, जो कि रेनबो के सेवन कलर से जो कलर born होता है, क्रिएट होता है. So by every color bangles or spiral of bangles can be seen in the yard or in the unkempt yard. Unkempt it means that yard जो कि dirty है और जो कि improper मेंटेन्ड है, इम्प्रॉपरली मेंटेन्ड है, उस यार्ड में इन सभी बैंगल्स के स्पाइरल्स को देखा जा सकता है. कहीं में लाई इन माउंट्स इट मीन्स ढेर लगा हुआ देखा जा सकता है. देन आफ्टर दीज स्पाइरल ऑफ बैंगल्स आर पाइल्ड ऑन द फोर व्हील्ड हैंड कार्ड्स. जो ठेले होते हैं, हैंड कार्ड्स होते हैं, तो इन स्पाइरल्स को यहाँ से उठाकर उन ठेलों पर रख दिया जाता है. एंड दैट हैंड कार्ड्स आर पुश्ड बाय द यंग मैन्स इन थ्रू द नैरो लेन्स ऑफ दिस डर्टी टाउन, ऑफ दिस स्मॉल एंड डर्टी टाउन. ठीक, सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द बैंगल्स आर मेड एंड व्हाट्स द बेनिफिट्स एंड इवन disadvantages are being received by these people, and when these bangles are completed, then how they are taken out of the houses and how they are taken to the markets, and how they are sold. So these data has been given by the writer. So writer is saying कि यहाँ से बनने के बाद इन स्पाइरल ऑफ बैंगल्स को व्हील्ड हैंड कार्ड्स पर रखा जाता है और दैट हैंड कार्ड is pushed by the young men through the narrow lanes of this even shanty towns. It means dark and small towns. Writer is saying, and in the dark huntments next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to dark than to the light outside. That's why they often end up losing their eyesight before they become adults. Now, writer is saying that even in the dark hutments, it means a group of huts. The group of huts, writer is saying that in the group of huts, boys and girls are sitting in front of the lamps, and the light of the lamps is getting or keeping on flickering. ठीक है, वो फ्लिकर करती रहती है. लैम्प की जो लाइट होती है वो फ्लिकर करती रहती है. दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट. वो बल्ब की लाइट की तरह, ट्यूब की लाइट की तरह कॉन्स्टेंट नहीं होती. तो राइटर इज सेइंग दैट दीज द ग्रुप ऑफ huts, it means hutments, है ना. In the dark hutments, boys and girls with their father and mothers are sitting in front of the oil lamp lights, and they keep on welding the pieces of colored glass into the circle of bangles. तो वहाँ पे बैठकर वो लैम्प की लाइट में वो इन बैंगल्स के जो सर्कल्स, जो कलर्ड जो ग्लास होते हैं, उनको बैंगल के सर्कल्स में वो वेल्डिंग करते रहते हैं. और ड्यू टू दिस, when they more of the time, more of the hours they work in the light of oil lamps, तो their eyes are more adjusted to dark than to the light outside. इसलिए यही कारण होता है कि उनकी जो आई साइट है वो डार्क के साथ ज़्यादा एडजस्ट करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ लाइट आउटसाइड. That's why they often end up losing their eyesight before they become adults. So इसलिए this is the main reason that these children even often lost their eyesight before they become adult. बहुत बार ऐसा होता है कि that before becoming adult these young children had to lose their eyesight, because most of the time, most of the hours they spend in front of the flickering light of oil lamps, and they had to sit with their mother and fathers, and they have to weld the colored glasses into circle of bangle. So they really work hard.
they really work hard, and due to this hard work, due to this darkness, they have to lose their eyesight also. Savita, a young girl in a drab pink dress, sit alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongue of a machine, I wonder if she knows the sanctity of bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. Now, writer is giving or telling about Savita. Uh, she's saying that Savita is a young girl, and she's wearing a dull pink dress, and she's sitting along with an old woman, and she is soldering. She is also soldering the welding the pieces of glass. And she is so talented, she is so skillful that her hands are moving mechanically like the tongues of the machine. बिल्कुल मशीन की तरह उसके जो hands है they are working. Savita is welding the pieces of glass, and she is so skillful, so talented that her hands are moving like machines, or mechanically like the tongue of the machine. So after observing this condition, here writer raises a question that she feels surprised in herself that this girl is making or welding the pieces of glass so perfectly. Does she know the purity of bangles? राइटर क्वेश्चन रेज करती है कि जितने स्किलफुली और परफेक्टली ये गर्ल इन बैंगल्स को मेक कर रही है, पीसेस को वेल्ड कर रही है, तो क्या ये इन बैंगल्स की प्योरिटी को जानती भी है? इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन स्वाग. राइटर बताती है कि जो बैंगल्स है दे सिंबलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग एंड प्योरिटी इन मैरिज. Writer says that one day will come when this girl will also have to be a bride, and that day her head will be covered with red veil, and her hands will be painted with henna. मेहंदी से, रेड मेहंदी से उसके हैंड्स को इवन पेंट किया जाएगा, मेहंदी उसको लगाई जाएगी, एंड रेड बैंगल्स वुड बी रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट. और उनको ये जो बैंगल्स आज ये बना रही है, तो ये बैंगल्स उसको पहनाई जाएगी. वन डे वुड कम व्हेन शी वुड बिकम अ bride, and that would be a time when she would also have to wear bangles, and she would also even have to cover her head with veil, and she would also have to even color her hands with red henna. Like the old woman beside her, who became one many years ago, she still have bangles on her wrist. Writer is saying कि उसको भी बिल्कुल इस ओल्ड लेडी की तरह ही इसको ब्राइड बनना होगा, जैसे कि वो बहुत टाइम पहले बनी थी. ठीक है, उसको भी और वो जो लेडी है वो आज तक भी अपनी रिस्ट में बैंगल्स को पहने हुई है. बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उसकी आइज में कोई भी लाइट नहीं रही. ठीक है, बाय द हार्ड वर्क और इवन बाय वर्किंग हार्ड शी हैज समवेयर लॉस्ट हर आईसाइट. जब राइटर उससे बात करती है लेडी से, तो लेडी कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. दैट्स व्हाट शी हैज ripped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Now writer even discuss or ask this woman about her work and about this condition. तो लेडी कहती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में एक वक्त भी शेर भर खाना, इट मीन्स पेट भर खाना नहीं खाया है. ठीक है, उसने अपनी थ्रू आउट लाइफ एक भी पार्ट ऑफ द डे ऐसा नहीं था जब उसने सफिशिएंट अमाउंट उसने फूड का खाया हो. और उसकी जो जब वो लेडी बोल रही थी तो उसकी आवाज़ के अंदर कोई भी जॉय नहीं था. ठीक है, और उसने बताया कि शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन एंटायर लाइफ टाइम. है ना, एक भी बार उसने फुल मील नहीं खाया.
ठीक है, और ये है जो कि उसने अपनी लाइफ से उसको मिला है। उसका जो हस्बैंड था, ही वॉज ऑल्सो एन ओल्ड मैन with having a beard, and he also said that he did not know nothing except Bengals, and whatever he did in his life, only he has successfully constructed this house for living the family members inside it। केवल उसने कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ वो यही कर पाया है कि उसने सक्सेसफुली ये जो घर है वो कंस्ट्रक्ट कराया है, जिससे कि उसके फैमिली मेंबर्स आसानी से और इवन कंफर्टेबली इस घर के अंदर रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। तो उसकी स्टेटमेंट को सुनने के बाद समवेयर द राइटर फील्स सरप्राइज्ड इन हरसेल्फ दैट रियली दिस पर्सन हैज सक्सेसफुली अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव। क्या वास्तव में इस बंदे ने वो अचीव कर लिया जो कि बहुत सारे लोग अचीव अपनी लाइफ में नहीं कर पाए। इट मीन्स इस बंदे ने अपने सर के ऊपर छत को पा लिया है। तो ये जो है इसने यहाँ की फिरोजाबाद की कंडीशन को राइटर ने डिस्क्राइब किया है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young man echoed the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind numbing toil have killed all initiatives and ability to dream. Writer is saying that it doesn't matter the young men of Firozabad do not want to work, and even something different than this bangle making, it doesn't matter, but whenever they want to work even different from this bangle making, surely they feel the need of money, और मनी उनके पास नहीं होती। तो राइटर बता रहे कि एवरी मॉर्निंग हर घर के अंदर यही जो क्राई है पैसा ना होने की, वो सुनी जा सकती है। ठीक है, पैसा ना होने की क्राई सुनी जा सकती है। किस चीज़ के लिए? कि उनके पास अपने बैंगल मेकिंग के बिजनेस को रन करने से अलावा और किसी बिजनेस को रन करने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, और जो यंग मैन है, दे ऑलवेज ब्लेम देयर एल्डर्स फॉर दिस सिचुएशन। वो उनका कहना है कि उनके एल्डर्स ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से उनकी लाइफ चलती रहती है। ऐसा लगता है कि शायद फिरोजाबाद के अंदर जो है मीन्स टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत ही चेंज आ पाया है, अदरवाइज सिचुएशन इज सेम एज इट वाज इन पास्ट टाइम। राइटर इज सेइंग कि जो ईयर्स ऑफ माइंड मम्बलिंग टॉयल इट मीन्स हार्ड वर्क, एक बहुत ही जो मेंटली हार्ड वर्क इन लोगों ने इस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से लोग करते आ रहे हैं, तो उस हार्ड वर्क ने इनकी जो ड्रीम देखने की एबिलिटी है उसको कंप्लीटली किल कर दिया है, उसको कंप्लीटली एंड कर दिया है। किसी भी अच्छे काम को करने की जो एबिलिटी होनी चाहिए उस माइंड नंबलिंग टॉयल ने उसको एंड कर दिया है ना। जो मेंटली ये बहुत ज़्यादा इवन इरिटेशन गेट करते हैं, फेडअप रहते हैं और बहुत ही फिजिकली वर्क ये इवन करते हैं, तो उस वर्क ने उस एक्स्ट्रा जो वर्क इन्होंने और एक्स्ट्रा जो टायर्डनेस ये गेट करते हैं उसने इनकी किसी भी तरह की ड्रीम देखने की एबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। Why not organize yourself in a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into a vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. एक दिन राइटर बताते हैं कि वन डे सी मेट अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, है ना, एक यंग मैन के ग्रुप से वो मिलती है। ठीक, वो यंग मैन का ग्रुप जो कि इन मिडल मैन के एक बहुत ही मीन्स डर्टी सर्कल के बीच में फंसा हुआ था। ठीक है, यंग मैन के ग्रुप से ये राइटर एक दिन मिलती है और वो ग्रुप जो कि यंग मिडिल मैन के इस डेंजरस और डर्टी सर्कल में फंसा हुआ है ना, उनके बीच फंसा हुआ है, और उसी सर्कल में उनके फादर्स और फोर फादर्स जो उनके पूर्वज थे वो भी फंसे हुए थे। तो राइटर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन अ कोऑपरेटिव, आखिर तुम सब लोग एक इवन कोऑपरेटिव वे से एक साथ क्यों नहीं आते, क्यों तुम एक साथ ऑर्गेनाइज नहीं होते, ये राइटर उनसे क्वेश्चन करती है। तो रिप्लाई यंग मैन का जो ग्रुप होता है वो रिप्लाई देता है कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस who will be holded up by the police, beaten and dragged
टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल देर से। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो इन मिडिल मैन के अगेंस्ट, जो कि हमारा सारा जो रियल जो मनी है, जो रियल प्रॉफिट है, जो कि हमारा सब गेट कर लेते हैं, खा जाते हैं मिडिल मैन, तो अगर हम इन मिडिल मैन के अगेंस्ट अपना एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते भी है, तो ये जो है हमसे पुलिस हमें जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट करा देते हैं, हमें पिटवाते हैं और हमें जेल में डलवा देते हैं फॉर डूइंग सम इलीगल वर्क। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. उनका कहना था कि उनके पास they do not have any leader, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है जो कि उनकी किसी भी या उनकी जो है किसी भी वर्क को और थिंग्स को डिफरेंटली देखने में हेल्प कर सके। उनके बीच कोई भी ऐसा लीडर नहीं है। Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. उनका कहना है कि उनके जो फादर्स है they have also become as tired as these young men are. And if these young men talk anything to their father, so they keep on talking endlessly about the spirals. एक जो है इधर से उधर वो जो एल्डर्स है वो बातें करते रहते हैं, उनकी बातें हमेशा पॉवर्टी से और इवन अपैथी तक और ग्रीड से इनजस्टिस तक ही रह जाती है। ठीक है, पॉवर्टी से उनकी जो बातें है वो सैडनेस तक, ठीक है, अपैथी सैडनेस तक चली जाती है और लालच से उनकी बात इनजस्टिस तक ही रह जाती है। इससे अलावा वो बातें नहीं करते है ना, इन चारों तरफ उनकी बातें घूमती रहती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं सोचते, किसी भी तरह से सॉल्यूशन के बारे में वो नहीं सोच पाते। तो इस तरह से यंग मैन का कहना है कि हमारे जो पेरेंट्स है, ठीक है, वो भी इतने ही टायर्ड हो चुके हैं जितने कि वो है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of sahukas, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Now writer is giving her own views after observing the situation of the people living in Firozabad and after even observing the working condition of Firozabad, even जो business Firozabad के अंदर रन होता है तो उसकी situation देखने के बाद now the writer is giving her own views about this chapter. She is saying that after observing this, she has found that there are two different world living in this, two different kind of world living, ठीक है, on this लैंड। ठीक, टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड, दो तरह के वर्ल्ड जो है रह रहे हैं इस लैंड पर, इस रिजल्ट पर वो पहुंचती है। ठीक है, वन वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ पुअर पीपल, ठीक है, हु आर सफर विद सेवरल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, पॉवर्टी, और जो है वो अपने कास्ट क्रीड की प्रॉब्लम से जिसके अंदर वो बोर्न हुए उस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, है ना। एक तो ग्रुप है पुअर पीपल का, हम शॉर्टली कह सकते हैं, ठीक है, वो पुअर कास्ट एंड क्रीड जिसके अंदर उन्होंने जन्म लिया है। और सेकंड जो ग्रुप है वो है साहूकार्स का, मिडिल मैन, पुलिस मैन, है ना, जो लॉयर्स है, जो रिच मैन है, ठीक, पॉलिटिशियंस है। तो जो सेकंड ग्रुप है वो इन रिच पीपल का है, ठीक है। तो वन ग्रुप पुअर पीपल का है और सेकंड जो ग्रुप है वो इन रिच मैन का है। तो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड्स आर लिविंग टुगेदर ऑन दिस लैंड. This has been noticed by the writer herself. She is saying further that together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware. He accepts it as naturally as his father. Writer is saying कि both the group put the work or impose the work on the small child. ठीक है, और जिसको वो बच्चा जो है वो कभी उतार नहीं सकता है ना, उस बर्डन से वो कभी बच्चा फ्री अपने आप को नहीं कर सकता है। ठीक है, पुअर पीपल तो इसलिए बच्चे पर बर्डन डाल देते हैं बिकॉज श्योरली द चाइल्ड विल ऑल्सो अर्न द मनी एंड ही विल हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली। और जो रिच मैन है वो इसलिए बर्डन डाल देते हैं बिकॉज दे वॉन्ट द वर्कर्स, द लेबरर्स इन अ स्मॉल वेजेस, है ना, इन अ स्मॉल वेजेस, जैसे कि कम खर्च पर उनको वर्कर्स की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बोथ द ग्रुप इम्पोज द बैगेज, इम्पोज द बर्डन ऑन द स्मॉल चाइल्ड, जिसको वो थ्रू आउट लाइफ उतार नहीं पाता है। और इससे पहले कि वो अवेयर होता है, अलर्ट होता है और समझता है कि व्हाट ही इज डूइंग, व्हाई ही इज इवन
डूइंग सो हार्ड वर्क, सो तो तब तक जो है वो उसको नेचुरली, जैसे कि उसके फादर ने एक्सेप्ट किया था, तब तक वो इस बर्डन को नेचुरली अडोप्ट एक्सेप्ट कर चुका होता है। ठीक है, तो पहले जो है उस पर बर्डन लाते हैं, और इससे पहले कि वो अलर्ट होकर इस बर्डन को नोटिस कर पाता है, तो वो तब तक इस बर्डन को जैसे उतने ही नेचुरली जो है एक्सेप्ट कर चुका होता है जितना कि उसके फादर ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इजंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर। तो राइटर बताती है कि अगर वो जो है किसी भी तरह से मतलब वो कुछ भी करता है, अगर वो इस वर्क को छोड़कर वो कुछ भी करता है, तो इसका मतलब है डेयरिंग करना, और डेयरिंग जो है वो उसकी ग्रोइंग अप नेचर का पार्ट नहीं हो सकता है ना, बिकॉज अगर वो जो है कुछ और वर्क स्टेप लेना चाहेगा तो समवेयर ही विल हैव टू फेस द ग्रुप्स, बोथ ऑफ द ग्रुप्स है ना, पुअर एंड रिच, उन लोगों को उसको फेस करना पड़ेगा। तो नाउ राइटर इज सेइंग दैट व्हेन शी वाज टॉकिंग to Mukesh, so she found a flash in the eye of Mukesh. So after observing the flash or a new light in the eye of Mukesh, she felt cheerful. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. तो वो हैप्पी फील करती है राइटर जब उससे पूछते हैं कि वो क्या करना चाहता है, तो वो बताता है कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके लिए वो गैरेज जाएगा और वहाँ पर इसके बारे में वर्क को सीखेगा। बट हेयर राइटर सेज दैट द गैरेज इज इवन इज एट अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम। तो मुकेश इस पर कहता है कि नो प्रॉब्लम, ही विल वॉक, वो पैदल चलकर जाएगा। अब राइटर से एक क्वेश्चन और पूछती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। अगर क्या तुम जो है प्लेन उड़ाने का भी ड्रीम रखते हो? तो वो एकदम से साइलेंट हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर देखते हुए एकदम से नो कहते हैं कि नहीं, मेरा प्लेन उड़ाने का कोई भी ड्रीम नहीं है। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few planes fly over Firozabad. तो जो है मीन्स एकदम से जब प्लेन की बात राइटर पूछते तो वो एकदम से ग्राउंड को ऑब्जर्व करता हुआ एकदम से नो बोल देता है, लेकिन उसकी जो उसकी मर्मरिंग थी, उस मर्मरिंग में एक एम्बेरसमेंट था, एक सैडनेस जरूर थी, लेकिन वो सैडनेस जो थी वो रिग्रेशन में है ना, रिग्रेट में भी नहीं बदली थी। इट मीन्स she was still having some hope for being successful motor mechanic in his heart. ठीक है, वो अपने इस कार के ड्रीम को लेकर ही सेटिस्फाइड था, और वो अपने टाउन की स्ट्रीट में इन कार्स को दौड़ते हुए देखता था, और कुछ प्लेन्स भी थे जो कि उसकी जो है फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ा करते थे, फ्लाई किया करते थे। तो इन दिस वे दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। थैंक यू।